So, yes, students, welcome back to statistics. Continuing with chapter number 4. Now, before I start with my today's topic, I'll give you the homework, that is exercise 4.6, that deals with combined standard deviation, students. Now, on the screen, students, you will find that the information of number of accidents of 10 days on a particular road is given. We are supposed to find out mean and standard deviation, and along with that, percentage of days having the number of accidents lying between the limits x bar plus minus s. X bar plus minus s भी हमको निकालना होगा. Now you all know how to find out mean and standard deviation, so I directly move on to our today's this screen's main question, that is x bar plus minus s. तो देख के मालूम चलता है, ऑब्वियस सी बात है, पहले x bar minus s निकालेंगे, फिर x bar plus s निकालेंगे. तो x bar जो है that is 2.6, s is 1.2. now 2.6 minus 1.2, क्योंकि हम x bar minus s कर रहे हैं, is 1.4. फिर x bar plus s है, तो 2.6 plus 1.2 equals to 3.8. Now it can be seen from frequency distribution that the number of accidents lying within the limits 1.4 and 3.8 is 2 and 3. Now students, ये लाइन का मतलब होता है कि 1.4 और 3.8 के बीच में कितने लाए करते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. सो 1.4 इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ऑब्वियस है 2 होगा, बिकॉज 3.8 तक हमको जाना है. 3.8 तक हमको जाना है, इसका मतलब इट इज 4 इंक्लूड नहीं हो सकता. 3.8 के अंदर 3 तो आता ही है. इट मीन्स इट इज 2 and 3. अब 2 and 3 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नंबर ऑफ डेज जो है, वो है 3 plus 3. तो वही चीज इधर भी आप लोगों को दी हुई है. Limits and 1.4 and 3.8 are 2 and 3, and the number of days having 2 and 3 accidents are 3 and 3 respectively. Hence, the number of days having the number of accidents within the limits x minus s equals to 1.4 and x bar plus s, यानी कि x bar minus s और x bar plus s जो 1.4 और 3.8 है, are 3 plus 3. 3 plus 3 कैसे आया वो मैंने आपको अभी अभी बताया. जो नंबर ऑफ डेज हैं 2 और 3 के सामने वाले, वो आएगा आपका with the help of pointer I am explaining. 3 plus 3 आएगा, that is 6. Now in the question we are asked to find out the percentage हम लोगों को इधर पूछा गया. So since the total number of days is 10, yes, जो हमारा n है वो हमारा 10 आया है. So as the total number of days is 10, the percentage of days having accidents within the limits is 6, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, divided by 10 जो हमारा mean total आया into 100 equals to 60. Yes, this is our answer, students. बहुत ही simple and easy sum था ये. Now yes, over here also students, x bar और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान से कैलकुलेट करना है. अगर वहाँ गलती हुई तो सम रॉन्ग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द मीन number of units produced by 100 workers of a factory per day is 60 units and its standard deviation is 10. यानी कि हम लोगों को यहाँ पे इतने से में ही थोड़े डिटेल्स आ गए हैं. दैट इज n is 100. yes, the mean number of units produced by 100 workers. 100 workers यानी कि n हुआ हमारा 100. मीन आगे वर्ड आया है, पूरा सेंटेंस रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा. Our mean, that is x bar, is 60 and standard deviation is 10. Later on, it was noticed that 2 workers have actually produced 30 and 20 units respectively, but it was registered as 5 and 45 units respectively. यानी कि यहाँ पे registration में गड़बड़ हो गई थी. By considering this, find corrected mean and corrected standard deviation of the number of units produced by the workers. Now over here we are supposed to find out not only the corrected mean but also the corrected standard deviation. Corrected mean कैसे find out करते थे वो भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है, but still once again we will go through
पहले हम लोग एक्स बार के फॉर्मूला में डिटेल्स डालेंगे तो हमें सिग्मा एक्स मिल जाएगा. एक्स बार ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 60 इक्वल्स टू, यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स हमको फाइंड आउट करना है, एन ऑलरेडी गिवन 100. सो इट इज 60 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो एन की जगह पे हम 100 लिखेंगे. सो इट इज 100 जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे in order to get sigma x, and we will get 6000. Now standard deviation के फॉर्मूला में हम डिटेल्स डालेंगे. सो इट इज s equals to, yes, रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ओवर हियर सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 10 इक्वल्स टू रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर जो फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय n, दैट इज 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एक्स बार जो है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 60 का स्क्वायर. फिर उसके बाद 10 का हम स्क्वायर अप अगर उसको करेंगे तो यहाँ का रूट जो है वो हट जाता है. यस, दिस इज ओल्ड मैथमेटिक्स. सो 10 को स्क्वायर अप करेंगे इक्वल्स टू 100 आएगा. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 आएगा. उसके बाद ऑब्वियसली बात है 3600 जो है वो उस साइड चला जाएगा या 100 उस साइड आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. सो इट इज 3700 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100. अगेन सेम थिंग, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 60 इंटू 100, वैसे ही इधर 3700 इंटू 100 in order to get sigma x square. Now ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए थे ये आर नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें पुराना वाला डेटा के साथ है, हमको नए वाले डेटा के साथ करना है. नाउ रिप्लेसिंग रॉन्ग नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करेक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स वी गेट. अब हमें जो रॉन्ग वाला था वो हम हटा देंगे, जो राइट वाला था वो हम ला देंगे. सो करेक्टेड सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 6000 माइनस 5 माइनस 45 प्लस 30 प्लस 20. अब माइनस हमने किया 5 और 45. क्यों? क्योंकि वो हमारे गलत वाले थे ना. Once again we'll read the question. Later on it was noticed that two workers have actually produced 30 and 20. यानी कि हमारे जो सही फिगर्स हैं वो 30 and 20 हैं और गलत वाले 5 and 45 है. तो ऑब्वियस सी बात है 5 and 45 माइनस करेंगे, 30 and 20 एड अप करेंगे तो हमारे को 6000 मिलेगा. नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा इधर आया था दैट इज 3,70,000, वही लिखेंगे. अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हम सबका स्क्वायर अप ही लेंगे. अगेन सेम चीज, जो गलत वाले थे वो माइनस होंगे, जो राइट वाले थे वो एड अप होंगे. पर यहाँ पे यस स्टूडेंट्स स्क्वायर अप करना है. तो माइनस 5 3,70,000 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. Yes, you will do all the calculations and you will get corrected sigma x square, that is 369,250. अब corrected mean, yes, corrected mean find out करने के लिए correct sigma x upon n करेंगे. correct sigma x at the 6000 divide by n, that is 100 equals to 16. It's now same way. corrected standard deviation, उसके लिए भी obvious ही बात है, correct sigma x square आएगा divide by n minus corrected एक्स बार का स्क्वायर. सो इट इज 369,250 अपॉन 100 माइनस 60 का स्क्वायर रूट में आएगा स्टूडेंट्स. एंड अगेन रूट में डिवाइड करने पे आएगा 369 2.5 माइनस 3600 माइनस करेंगे फाइनली हम रूट में ही रहेगा तो इट इज रूट 92.5. यस, फाइनली उसका रूट निकालेंगे तो 9.6177 राउंड ऑफ करके 9.62 यूनिट्स. Now next sum. Now the details are given to you on the basis of daily wages in rupees paid to the workers of two different firms. यहाँ पे फर्म ए फर्म बी नंबर ऑफ वर्कर्स हमें बताया गया है 20 and 30. मीन डेली वेजेस इन रुपीज 250 and 400 दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन 10 and 12 आप लोगों को दिया हुआ है. Now on the basis of this table we are supposed to
find out the answer to these three different questions. Now, very first one is which firm is paying more total daily wages to their workers. Now, उसके लिए हम लोग multiply करेंगे number of workers with mean daily wages. Number of workers is n, whereas mean daily wages नाम से ही मालूम चलता है that is x bar. अब but natural है फॉर्म ए जो होगा वो ग्रुप 1 होगा, तो n1 x bar 1, फॉर्म बी n2 x bar 2, उसका डिटेल जाएगा जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था. नाउ एज आई सेड वी विल बी मल्टीप्लाइंग फॉर्म ए के लिए 20 इंटू 250 यू विल गेट 5000, बी के लिए 30 इंटू 400 यू विल गेट 12,000. सो इट इज देखकर ही मालूम चल रहा है कि फर्म बी जो है pays more daily wages. Now our second question, determine which firm shows more relative variation in wages paid to the workers. Yes students, more relative variation यानी कि सबसे पहले आप लोगों को CV find out करना है. CV is S upon X bar into 100. S is 10, X bar 250 into 100, 4%. Firm B का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, you will get 3%. Statement you all know how to write. So over here the coefficient of variation for firm A is more. Yes, 4. Obvious है 3 से ज़्यादा होता है. Hence there is more variation in the daily wages of firm A. Now next is combined mean. Now over here find combined mean and combined standard deviation for the two firms. Now students, you all know how to find out combined mean and combined standard deviations. Now, so as you all know, so we won't discuss about it. Everything is given to you. Statements मैं हमेशा बोलती हूँ याद करके आप लोगों को लिखनी होंगी, ध्यान से लिखनी होंगी. And the next one आप लोगों को बोला गया है over the information of number of roses of on 30 rose plants in a nursery is given. You're supposed to find out range, coefficient of range, QD, coefficient of QD, MD and coefficient of MD. Question दिया हुआ है, if you see it is mixed one, क्योंकि आगे आप लोगों को discrete दिया हुआ है, बाद में classes बनाई हुई हैं. And the next is frequency, तो पहले दो columns भी same ही हैं. Yes, total किया गया frequency का, you will get 30. Now students, as over here you are supposed to find out everything. आप लोगों को यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी भी फाइंड आउट करना है, सब ऑलमोस्ट सब फाइंड आउट करना है. तो सब कैलकुलेट भी करना होगा. सबसे पहले इन्होंने CFI कैलकुलेट किया है. यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट. मिड वैल्यू भी आप सबको आता है कैसे कैलकुलेट करना है. फिर मीन के लिए f इंटू एक्स चाहिए होता है, दैट ऑल्सो यू ऑल नो. फिर उसके बाद यस हमारे मीन डेविएशन के लिए x माइनस एक्स बार, और फिर उसको आप लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विथ माय सम. मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स का टोटल 243 अपॉन एन 38.1. नाउ ओवर हियर नेक्स्ट रेंज फाइंड आउट किया. रेंज के लिए हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट चाहिए होता है. सो ओवर हियर द हाईएस्ट इज 22, क्योंकि 16 to 22 मेरा लास्ट क्लास है, तो 22 इधर आप लोगों का हाईएस्ट है. द लोएस्ट इज 1, सो वेरी सिंपल, 22 माइनस 1, आर रेंज इज 21. कोएफिशिएंट भी आप सबको मालूम चल ही गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है. इट इज XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL. सो 21 अपॉन 22 प्लस 1, दैट इज 21 by 23. You will get 0.9130. Next is Q1. Q1 yes, यहाँ पे क्योंकि आधे सम में क्लासेस दिए हुए हैं तो आप जो है वो n/4 वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे. सो n/4 that is 30/4 you will get 7.5. Now 7.5 हम लोग देखेंगे CFI वाले क्लास में. 7.5 जो है वो yes इधर 8 के अंदर आ जाएगा. सो ओवर हियर your Q1 is 5. उसके बाद हम Q3 कैलकुलेट करेंगे is 3n/4. So 22.5 फाइनली you will get 22.5. सेम CFI कॉलम में हम देखेंगे तो 22.5 जो है वो 26 CFI के अंदर आ जाएगा. सो इट इज़ 8 to 12 वाले में. 8 to 12 वाला है हमारे
क्लास में आएगा. सो I'll tell you the details. हमारा L होगा 8. Yes, our L will be 8. Then उसके बाद next है हमारा 3n/4. हमने already calculate किया 2.5. फिर उसके बाद -18 जो है वो 8 to 12 जो हमारी क्लासेस आई थी उसके ऊपर वाला CFI लेते थे. सो 18. फ्रीक्वेंसी वही वाले क्लास की जाती है. सो इट इज़ 8 एंड ओवर हेयर our class length is of 4. Calculations आप करेंगे details डाल के, you will get 10.25. QD and coefficient of QD, the formula remains the same. जैसे बताया गया है Q1 Q3 आ गया तो formula में details डाल के हो जाएगा. Now I move on to mean deviation. Mean deviation, yes, as I said, sigma f x minus x bar and modulus निकालेंगे आप, उसको divide by n करेंगे. So it is 87.6 divided by 30, you will get 2.92. And coefficient, yes, md upon x bar, that is 2.92 upon 8.1, you will get 0.36. बेसिकली ये सम इसीलिए मैंने अपने स्क्रीन पे रखा है, जस्ट अ रिमाइंडर, और इन शॉर्ट मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर इसमें कवर हो जाता है. So with the students, I'm done with my today's e-class. I hope you were able to understand. Thank you.